Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. कैसे हो जी? बढ़िया. I hope you and your family members all are doing perfectly well. So very quickly let me get into the content for the day, जो है OCM का चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, जो काफ़ी लेक्चर्स से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ. आज नहीं, पिछली बार से हमने बैंकिंग से ध्यान हटाकर हम इंश्योरेंस के ऊपर लेकर आए. इंश्योरेंस का मतलब क्या है, वो इंश्योरेंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स क्या क्या है, ये हमने पिछली बार पढ़ा. आज हम इंश्योरेंस की जो नींव है, या आप कह सकते हो फाउंडेशन, या आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स. ओके, तो इंश्योरेंस एक अलग दुनिया है और उसमें अलग कायदे कानून को फॉलो किया जाता है. तो ये कायदे कानून क्या है, जो इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके ये जो इंश्योरेंस की दुनिया है और ये जो इंश्योरेंस होता है वो सफल हो सकता है. पहला कानून, कोई भी सब्जेक्ट आप करो, वो सब्जेक्ट में कहाँ ना कहाँ पे किसी ना किसी तरह के प्रिंसिपल्स, कायदे कानून ज़रूर रहेंगे. ओके, यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट पीछे है, ये जी टेक्स्ट बुक से ही है आपका, तो समझने में इतनी परेशानी नहीं होगी. बट येस, जो कॉन्सेप्ट है उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं पूरी तरह से आपको देने के लिए ट्राई करूँगा. पहला इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है, वो है ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. मतलब जी फेथ, विश्वास किसी चीज़ में. यहाँ पे कौन किस में, एक शादी जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, बराबर, वो कब तक टिक सकती है, कब तक चल सकती है, दौड़ सकती है, जब तक एक दोनों के बीच में विश्वास हो, फेथ हो, गुड फेथ हो, बराबर. अगर उसमें थोड़ा सा भी शक का बीज आ गया, डाउट का बीज आ गया, तो वो जो रिश्ता है पति पत्नी का लड़खड़ा जाता है और आगे गाड़ी जाना मुश्किल हो जाती है. उसी तरह यहाँ पर जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है, दोनों को अपने बीच में ये जो फेथ है, विश्वास, ये रखना पड़ता है. अच्छा, विश्वास किस बारे में रखना है? बोथ द पार्टीज मस्ट हैव utmost good faith toward each other. The insurer and the insured must disclose all material facts clearly, completely and correctly. मतलब अगर आप जाके हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो
या आप एक कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो वो कंपनी आपको एक फॉर्म देगी, काफ़ी बड़ा और तगड़ा फॉर्म देगी। उसमें बहुत सारे डिटेल्स पूछेगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, 1 साल का होता है, 1 साल का, बराबर। और अगर आने वाले 1 साल में अगर आपको पॉलिसी मिल गई और आप अस्पताल में एडमिट हो जाते हो, बराबर, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है आपके अस्पताल का जो बिल है उसका भुगतान करती है, ओके, पूरा या कभी कभी मैक्सिमम पार्ट। बट अगर वो जो बीमारी है आपकी किसी बुरी आदत की वजह से आपको हुई थी और आपने वो बुरी आदत शराब का हो सकता है, धूम्रपान का हो सकता है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को जब फॉर्म भरा था नहीं डिस्क्लोज किया तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं बताई, तो वो जो कंपनी है वो आपका क्लेम, आपका जो हक होता है पैसे मिलने का जब आप अस्पताल में एडमिट हुए थे, उससे वो नामंजूर कर सकती है, वो उस रिक्वेस्ट को, उस क्लेम को खारिज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ये बोलकर कि हमें आपके प्रति विश्वासी रहना है और आपको हमारे प्रति विश्वासी रहना है, बट आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। फॉर्म में आपने ये लिख कर नहीं दिया कि आप पिछले 10 सालों से, पिछले 8 सालों से, 5 सालों से इसका सेवन करते हो, उसका सेवन करते हो, जिसकी वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती थी। तो हमको तो पता ही नहीं था, तो इसके लिए क्योंकि आपने झूठ बोला हम आपको पैसे नहीं देने वाले हैं। दोनों तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, कोई भी चीज़ छिपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली, गाड़ी की करवा ली और मैंने गाड़ी का 1 एक्सीडेंट छुपाया, 2 एक्सीडेंट छुपाया और मैंने ऐसे ही चुपचाप करवा लिया। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ गधे नहीं है, वो जानते हैं कि उनको अपना इन्वेस्टिगेशन आपके इतिहास के बारे में कैसा करना है और वो करते हैं, सटीकता से करते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, ओके। आधी कंपनी इन्वेस्टिगेटर्स की भरी हुई है कि जब क्लेम आता है, क्लेम का फॉर्म जहाँ पर कोई मांग रहा है 1 लाख दो, 10 लाख दो, 5 लाख दो, वो ऐसे ही बांटते नहीं हैं, वो अपना टाइम लेते हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और जब ये प्रूव हो जाए कि यस आपने कोई गलती नहीं की तो ही आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो प्लीज़ याद रखिए वो कोई दिलदार कंपनी नहीं है, वो तभी पैसा देगी अगर आपने ईमानदारी उनके साथ में बरती है। सो फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो दोनों तरफ से, इनकी शादी इनके साथ होने वाली है, इनकी शादी इनके साथ होने वाली है, आप अपनी सारी चीज़ें इन्हें बताओ, आप अपनी सारी चीज़ें इन्हें बताओ, 1 साल के बाद में झटका लगना नहीं चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्या है कि भैया जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है, करवा या जा रहा है, उसमें मेरी दिलचस्पी होनी चाहिए, उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बराबर, तो उसका इंश्योरेंस निकलवा के क्या फ़ायदा। गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है गाड़ी में, बराबर। सेहत का इंश्योरेंस करवाया, बट मैं तो सिगरेट, दारू, ये वो करके बिगाड़ रहा हूँ अपनी सेहत को, देन द लॉजिक ऑफ इंश्योरेंस डजंट वर्क। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, कि अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो जाए नुकसान होगा पैसे का, मेरे घर को कुछ हो जाए नुकसान होगा पैसे का, मेरी सेहत के कुछ हो जाए, मेरे लाइफ को कुछ हो जाए नुकसान होगा पैसे का। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस निकलवा रहा है ना, उसको जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है, ओके, आँखों का, जुल्फों का, बोली का, अपने आँखों का, ओके, हाथों का, पैरों का, जो भी अगाड़ी पिछाड़ी, हाँ, उसमें उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of the subject matter puts the insured in financial benefit। कि भैया मैं गीत गाता हूँ, so my voice is something very precious to me, बराबर।
आई रिपीट माई सेल्फ, उसकी वजह से मैं कमाता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरी टांगे मेरे को पैसा कमा कर देखती है। तो आई रिपीट, मेरा उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वेर एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर पुट्स हिम इन फाइनेंशियल लॉस। अगर कुछ हो जाए जिस चीज़ को इंश्योरेंस करवाया गया है तो मुझे पैसों का नुकसान होता है। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? एक गारंटी है। आइडेंटिटी मतलब अगर आपको नुकसान होता है, मैं कंपनी हूँ, चिंता ना करें, पॉलिसी में लिखा गया था मैं आपको कॉम्पेंसेट करूँगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर अटमोस्ट गुड फेथ में आपने आपकी सारी जानकारी मुझे करेक्टली, क्लियरली, कंप्लीटली दी थी तो भैया आपको हम पैसा ज़रूर देंगे। आइडेंटिटी मीन्स गारंटी और अश्योरेंस। अश्योरेंस ये लाइफ पॉलिसी में होता है। To put the insured in the same financial position as which he was immediately prior to the happening of the uncertain event। मतलब क्या है कि अगर आपके पास में 10 लाख का माल है और उसे आग लग गया और आपने कुछ नहीं किया, आग लग गया किसी की गलती के कारण, बराबर, तो आइडेंटिटी का मतलब है मैं ये गारंटी, ये वायदा आपको देता हूँ कि जो नुकसान आपको हुआ है उसके पहले जो आपकी पोजीशन थी, मैं इतना पैसा आपको दूंगा कि आप उस पोजीशन पे, उस स्थान पर दोबारा पहुंच जाओ ताकि वो नुकसान आपको हिट ना करे और आप आपका बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से आगे चला सके। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी जो है ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी की जान जाती है तो आप थोड़ी ऐसा बोल सकते हो नहीं उसके पहले जान था उसके पास, चल जान देते हैं, नहीं हो सकता। तो अगर माल का नुकसान होता है, घर का नुकसान होता है, गाड़ी का नुकसान होता है, तो यस, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे सकती है और उसका कॉम्पेंसेशन करवा सकती है। बट अगर जान जाती है तो कैसे कर सकती है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस में तो होता नहीं। इन केस ऑफ डेथ of the insured, the actual sum assured is paid to the nominee of the insured। जब किसी की जान जाती है और अगर उन्होंने इंश्योरेंस अपना करवाया है तो जो भी गारंटीड अमाउंट होता है वो उनको तो मिलता ही नहीं, उनको मिल नहीं पाता। बाकी सिचुएशंस में जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसे मिलता है, बराबर। घर का नुकसान हुआ, घर के मालिक को पैसा मिला। अगर सेहत का नुकसान हुआ, जिसके सेहत का नुकसान हुआ, जो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको पैसा मिलता है। बट लाइफ इंश्योरेंस में कैसे कराए? जीवन ही खत्म हो चुका है, ऊपर चले जा चुके हैं, तो जो आपका नॉमिनी होता है उनको पैसा दिया जाता है। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर agrees to compensate the insured for the actual loss suffered। The amount of actual compensation is limited to the amount suffered or the loss whichever is less। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में 10 लाख का माल था और आपने पॉलिसी 10 लाख का, छाता, प्रोटेक्शन 10 लाख का लिया, नुकसान 8 लाख का हुआ, 8 लाख। तो क्या आप बोल सकते हो मैंने तो 10 लाख का पॉलिसी लिया, मेरे को 10 लाख चाहिए? अरे भाई, नुकसान आपका 8 ही लाख का हुआ है, 2 लाख का माल तो पड़ा है आपके पास। तो आइडेंटिटी क्या कहता है? ये पैसा देंगे बट भैया जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी, ना कि जो पूरा माल आपके पास था। नहीं, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं एज फार एज प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी इज कंसर्न। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये जो वर्ड पढ़ते हैं ना, पढ़ते कुछ समझ में आता नहीं। द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। जहां पर भी आइडेंटिटी है, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, then the right of ownership of such property passes to the insurer। अगर गाड़ी का आपने इंश्योरेंस करवाया था, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और उसे उसकी दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो गया है, भारी भरकम नुकसान हो गया उसका, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देती है? कॉम्पेंसेशन देती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि उस गाड़ी का जो ओनरशिप है, क्योंकि हमने उसकी भरपाई आपको की,
वो हमारे पास में आ जाती है। टूटा ही सही, फूटा ही सही, हमारे पास में आ जाती है। हम छोटे मोटे स्क्रैच और डेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर गाड़ी को एक बड़ा धक्का लगा है कि वो चलाने लायक कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पेंसेट करती है। बट उसके बाद में उस टूटी फूटी गाड़ी का ओनर, मालिक आप नहीं रहते। वो कॉम्पेंसेशन मिलने के बाद में जो ओनरशिप होती है उस चीज़ की, सब्जेक्ट मैटर की, वो चला जाता है इंश्योरर के पास। तो ये कहता है, और वो अपने तरफ से स्क्रैप में बेच के जो भी पैसा उससे वो जुगाड़ सकते हैं, वसूली कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हो गया सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैं एक एग्जांपल जो पीछे दिया गया है वो पढ़ता हूँ ताकि ये कंट्रीब्यूशन का चक्कर आपको समझ में आ जाए। मिसेस सयाली इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया 2,50,000 का 2 इंश्योरेंस कंपनी से। चलता है जी, आप करवा सकते हो। विथ टी इंश्योरेंस 1 लाख के लिए, जो उनके प्रॉपर्टी का 2/5 पार्ट था, टुकड़े टुकड़े में। आर इंश्योरेंस कंपनी से 1,50,000 के लिए, तो पूरा 2.5 लाख हो गया 3/5 के लिए, बराबर। 2/5 का इंश्योरेंस अलग कंपनी से, 3/5 का इंश्योरेंस अलग कंपनी से। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन का चक्कर क्या है? प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, नुकसान हुआ 1,20,000 का। तो क्वेश्चन मार्क, 1,20,000 कौन देगा? एक ही कंपनी देगी? नहीं जी, कंट्रीब्यूशन करके 1,20,000 किया जाएगा। ओके, जिसने क्या कहा है? देन बोथ द इंश्योरेंस कंपनीज विल कंट्रीब्यूट, क्योंकि 2 लोगों से लिया गया था, टुवर्ड्स द एक्चुअल लॉस 1,20,000 का। टी कंपनी 2/5 देगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का 2/5 प्रोटेक्शन, ओके, सुरक्षा का दारोमदार, ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी थोड़ी हिंदी बेहतर होती जाए। टी कंपनी को दिया गया, 3/5 आर कंपनी को दिया गया था। तो जो क्लेम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि भैया तू भी पैसे दे, तू भी पैसे दे, डबल पैसे, नहीं, आप दो ताकि कंट्रीब्यूशन करके मेरा जो नुकसान है वो मैं पूरी तरीके से मिल मुझे सके, कॉम्पेंसेट मुझे थोड़ा थोड़ा करके, बट पूरा सारे जो लोग कंट्रीब्यूशन करके दे सके। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, अगेन पढ़ के इतना कुछ समझ में आता नहीं है। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? अगर आपके गोदाउन में आग लगता है तो आप जाते हो दौड़ दौड़ कर, गाड़ी में, 2 व्हीलर में बैठकर जाते हो, और आपको दिख रहा है क्या? आग लगा है गोदाउन में, माल जल रहा है, और आप क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसा खड़े रहते हो। अरे बढ़िया, क्या दिवाली के पटाखे, अरे मज़ा आ रहा है, और लगो। अरे ये क्या बेवकूफ़ी है? नुकसान आपका हो रहा है, आपको कोशिश करनी है कि वो नुकसान कम से कम हो। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, लोगों की हेल्प लो, कुछ तो करो। नुकसान जस्ट बिकॉज आपको पता है अरे इंश्योरेंस तो लिया है, होने दो, आग लगने दो, नहीं। अगर आपको चोट लगती है, अगर आग आपको लगे, आप ऐसा बोलोगे नहीं मेरा इंश्योरेंस से टेंशन नहीं, और आग लग, नहीं जी। आप पूरी कोशिश करोगे कि आग कम, शरीर के कम हिस्से को लगे, जिसके वजह से नुकसान आपका कम हो। तो उसी तरीके से बाकी चीज़ों के लिए भी यही फंडा चलता है। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब नुकसान हो रहा है, मज़े मत लो उसका, कोशिश करो अपनी तरफ से कि वो नुकसान कम से कम हो जाए। अगला, कॉजा प्रॉक्सिमा, ये क्या है? जब नुकसान 2 अलग चीज़ों के वजह से होता है, बराबर। अगर घर का या गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया गया है, बट इंश्योरेंस सारी चीज़ों से नहीं करवाया गया है, नुकसान काफ़ी अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है। घर में लाइटनिंग, बिजली कड़कती है ना, नुकसान उसके वजह से हो सकता है, चोरी की वजह से हो सकता है, दंगा फसाद की वजह से हो सकता है, आग लगने के कारण से हो सकता है, फ्लडिंग की वजह से हो सकता है, कितनी चीज़ों की वजह से नुकसान घर में पहुंच सकता है। बट सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि इतना प्रीमियम आप नहीं दे सकते हो। अर्थक्वेक, भूकंप क्यों नहीं हो सकता है, सुनामी
क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक कोस्टल एरिया है तो प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉज, प्रॉक्सिमिट मतलब क्या है? देखिए भाई, जब नुकसान अलग अलग चीज़ों की वजह से होता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट। घर के मालिक ने चोरी के अगेंस्ट क्या लिया था? इंश्योरेंस निकलवाया था। जाते जाते चोर आग लगाकर चला गया, चोरी की वजह से भी नुकसान हुआ, आग की वजह से भी नुकसान हुआ। तो पेमेंट जो होता है, कॉम्पेंसेशन किसकी वजह से होता है? देखिए, आग के कारण जो नुकसान हुआ था वो कवर नहीं किया गया था, बट चोरी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो डेफिनेटली कवर किया गया है। तो वो था कॉज, जो प्रॉक्सिमेट था, नज़दीक था, जिसका आपने प्रोटेक्शन करवाया था, उसका कॉम्पेंसेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिसकी जिम्मेदारी, जिन रीजंस की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, उन रीज़न की वजह से अगर नुकसान होता है तो डेफिनेटली उनको भरपाई करनी पड़ती है। हाँ जी, मेरे पीछे क्या है जी? सितार है, सरोद है, तबला है, बांसुरी है, संतूर है और काफ़ी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये स्पेसिफिकली इंडियन म्यूज़िक के साथ में कनेक्टेड है। और मैं आपको क्या भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग देने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि मेरे खुद का गाना बजाना का कोई ठिकाना नहीं है। पर प्ले इंडियन म्यूज़िक आपको मदद करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को समझने में। कैसे जी? ये मेरे बगल में है, देख लीजिए आप। कॉज प्रॉक्सिमा, पी से आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आई से आता है मिटिगेशन ऑफ लॉस, utmost good faith, subrogation, indemnity and contribution। ऑब्वियसली प्ले इंडियन म्यूजिक के अंदर जो भी हाईलाइटेड नहीं है वो एक सिर्फ कोडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बट इफ़ यू रिमेंबर प्ले इंडियन म्यूजिक, you will remember maximum points or principles of insurance, which is an absolutely important answer। आई होप ये आपकी हेल्प करे, और जब अपने दोस्तों को आप बताओ उनकी भी हेल्प करे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखें। अगर आप पुराने हमारे मित्र हो तो शेयरिंग ज़रूर किया करें, अगर नए हो तो बेल आइकन को और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और दोबारा हमारे चैनल पे लौट आए, दूसरों तक चैनल की जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, दिल से, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।